So, once again, welcome back, my dear student of Standard Ninth, and we will continue with our last chapter, that is chapter number 20, disaster management. We already did its three part, and in those three parts, we had discussed about the natural disaster. Now, in this particular section, we are going to discuss some man-induced disaster. So, without any delay, let's begin. Okay. So, here we are supposed to start. टॉपिक नंबर 2, मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर, मतलब इंसानों के द्वारा जो डिजास्टर होते हैं. So let me start. Those events which take place due to the direct or indirect, knowingly or unknowingly, done by men, unawareness or ignorance, failure of human machinery, etc., which cause heavy damage to human life and property are called man-induced disaster. फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा गया है कि कुछ इवेंट ऐसी होती हैं जो हमसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो जाती है, कभी हमसे जाने या अनजाने में हो जाती हैं. तो कई बार हमको पता नहीं होता है हम जो ये काम कर रहे हैं उसका आगे जाके रिजल्ट क्या होगा, और वो कई बार डिजास्टर बन जाती हैं. और ड्यू टू ह्यूमन मशीनरी फेल हो जाती है, यानी इंसान का जो काम काज होता है वो ठीक से होता नहीं है, एंड इसमें बहुत लोगों की जान भी जाती है और कई बार प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है. इसी डिजास्टर को हम लोग कहेंगे मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर. ओके. एंड इसमें सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट. देखो, हम और आप जो शहरों में रहते हैं, वो शहरों में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी हैवी इंडस्ट्री बनाई हुई है. दो इंडस्ट्रीज बहुत सारे सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करती है, बट कहीं ना कहीं बहुत प्रिकॉशंस भी लेती है, पर एक्सीडेंट हो जाते हैं. कई बार लापरवाही से होते हैं, कई बार इंसान है केयरलेसनेस की वजह से भी हो सकते हैं, एंड बहुत सारे रीज़न होते हैं. सो चलो बात करते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की. लेट अस स्टार्ट. लेट मी मेक सम स्ट्रेचिंग फॉर यू. ओके, डन. Industrial accident. In industrial township, mill, factories, etc., there is a chance of accident even after enough precautions are taken. Such accident result into the death of the people, livestock, and damage the property. Besides, the environment is also affected. Human errors are the base of the industrial accident. Men undertake the management and care of various machines and industrial process and collection, transfer of distribution of manufactured goods at every stage. Accident cannot be ruled out. देखो, ऐसे अगर हम लोग हर स्टेज में अगर ध्यान रखें ना, तो हम लोग एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं. बट इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. हर जगह तो हम लोग उसको रूल्ड आउट नहीं कर सकते, बट प्रिकॉशंस वी कैन टेक. ओके. ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी का. ठीक है. अब क्या हुआ था, लेट मी गो थ्रू द पैराग्राफ फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर. यूनियन कार्बाइड, located at Bhopal, which is the capital of Madhya Pradesh, used to produce insecticide. In the process of production of a poisonous gas, MIC, इसका फुल फॉर्म मैं आपको आगे बताऊंगा, was used. This gas was stored in large tank. In the early morning, 3rd December 1984, this poisonous MIC gas started leaking from the tank, which lasted for about 40 minutes. Due to this event, which took place in the early morning, the gas very quickly spread out in the dense populated area in Bhopal. According to the official figure, about 2,500 people died and thousands of the residents in Bhopal were affected by this poisonous gas. Besides people, the gas also killed thousands of birds and animals. Drinking water, reservoir, and unborn babies, newborn babies, pregnant women, etc., were victim of this adverse effect. While thousands of people become handicapped permanently and 1.5 lakh people were handicapped partially. Friends, यहाँ पर कहा जा रहा है that हमारी कंट्री, मैं आपको सीधा यहाँ पे ले आता हूँ तो आपको अच्छे से शायद क्लियर हो जाएगा. यू कैन सी, यहाँ पर एक इंडिया का मैप दिया हुआ है.
इंडिया के बिल्कुल सेंटर में आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश में कैपिटल है भोपाल। ओके, सब हम लोग थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं। सो भोपाल का आपको पूरा मैप दिया हुआ है एंड वहाँ पे आपको एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई हुई है। सो यूनियन कार्बाइड नाम की यहाँ पे एक फैक्ट्री थी। सो यूनियन कार्बाइड के अंदर एक इंसेक्टिसाइड्स बनाई जाती है एंड उसके लिए एक गैस का इस्तेमाल किया जाता है MIC। तो वो जो MIC गैस है उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। ओके, इसका ये फुल फॉर्म है। अब ये यूजुअली पेस्टिसाइड बनाने का काम करती है। अब हुआ क्या कि इसमें से कुछ निग्लिजेंस वहाँ से गैस लीक करती है एंड यू कैन सी द पिंक पार्ट। वो मतलब सिटी के मेन एरिया में ये गैस फैली, इतने एरिया में, अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड देखो यहाँ पे ह्यूमन कॉस्ट क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेट बताया जा रहा है अप टू 10,000 डेथ इन फर्स्ट 3 days। पहले दिन में इतनी गैस से कुछ 10,000 लोगों की डेथ होती है। हमारी बुक में तो 2,500 बता रखा है, ये मैंने नेट से लिया हुआ है। एंड एडिशनल 25,000 पीपल डाइड रिलेटेड टू द इंजरी बाय 1994। जो उससे मतलब बीमार हुए बाद में उनकी भी डेथ हो जाती है। सो इट इज़ द इवेंट, यू कैन सी बच्चों की क्या हालत थी, उनकी सोचने समझने की शक्ति जा चुकी थी। बॉस, अगर आप लोग भोपाल ट्रेजेडी करके अगर सर्च करोगे, आई एम सॉरी टू से बहुत सारे ऐसे फोटोज़ हैं जो मैं आपको नहीं दिखा सकता। ओके, सो 40 मिनट तक ये गैस लीक होती है एंड नॉट ओनली इंसान बट बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स भी अफेक्ट करते हैं। इस गैस के कारण जो आसपास का जो पीने लायक पानी था वो भी लगभग ख़राब हो चुका था। कुछ ऐसे बच्चे जो भी पैदा होने वाले हैं उनको तक ये अफेक्ट कर गया था। इवन जो नए पैदा हुए बच्चे थे उनको तो अफेक्ट किया ही किया, इवन प्रेग्नेंट वुमेंस को भी इसने बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया। एंड ये लोग कह रहे हैं कि 1.5 लाख यानी 1.5 लाख लोग पार्सली हैंडीकेप्ड हो गए। सो इट्स अ वेरी ह्यूज मिस्टेक आई कैन से। ओके, इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ प्लेस, इफ़ यू आर इमेजिन योर सेल्फ इन अ प्लेस जहाँ पे कोई गैस लीक टाइप का समथिंग कुछ हुआ है, तो एट द टाइम आपको क्या करना चाहिए। मीन्स ऐसी सिचुएशन हो ही ना, या आप कभी गलती से वहाँ पे फंस भी गए हो, तो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। नंबर 1, इंस्टॉल मॉडर्न वार्निंग सिस्टम ऑफ गेटिंग एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट गैस लीक। जैसे कि नहीं कुछ कुछ बिल्डिंग्स में होता है स्मोकिंग सेंसर्स होते हैं, अगर आप पास में सिगरेट ले जाओ तो वो तुरंत ही सायरन बजने लग जाता है। तो MIC गैस जब लीक कर रही थी तो क्या कोई वहाँ पे वार्निंग सिस्टम था ही नहीं? ऑफकोर्स नहीं था, अगर वो होता तो वार्निंग सिस्टम बज नहीं जाता। Anyhow, predetermine the high levels of measures for safety in factories and support it। आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपकी जो फैक्ट्री है उसमें आप हाई लेवल की सिक्योरिटी मेजर्स करो। लेकिन लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में ये सब इंस्टॉल नहीं करते हैं, जो अगेन एक बहुत ही डेंजरस साइन है। इफ़ द गैस लीक ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफर, द गैस टैंकर शुड बी ड्रिवन अवे फ्रॉम द ह्यूमन सेटलमेंट। कई बार क्या होता है, टैंकर से हम लोग गैस ट्रांसफ़र करते हैं और उसमें अगर लीक करने लग जाए तो हम मेक श्योर करेंगे उसको ऐसी जगह ले जाए जहाँ पे इंसानी बस्ती ना हो, ताकि उसका इम्पैक्ट इंसानों पर कम से कम हो। बट एनी हाउ एनवायरनमेंट को तो कॉस्ट पे करना ही पड़ता है। ऑब्जर्व द विंड डायरेक्शन एंड रन इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर हवा इस तरफ चल रही है तो जो गैस का इफेक्ट होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा। डू नॉट ट्रीट ब्रीथलेसनेस, बर्निंग आइज एक्सेट्रा बाय योरसेल्फ बट सीक मेडिकल गाइडेंस इमीडिएटली। अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि हमारी आंखों में जलन हो रही है या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप लोगों को उसको अवॉइड नहीं करना है, आपको तुरंत ही मेडिकल एश्योरेंस में जाना ही है और देखना है कि क्या हो सकता है। फेटेड और अ वीक पीपल शुड बी इमीडिएटली शिफ्टेड फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया। जो लोगों का इम्यून सिस्टम कम है, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनको तो तुरंत ही उस जगह से हमको निकाल लेना चाहिए। इन्फॉर्म द फायर ब्रिगेड एंड द पुलिस स्टेशन। ओके, तो पुलिस स्टेशन एंड फायर ब्रिगेड में भी हमको इसकी जानकारी देनी चाहिए। पार्क द व्हीकल इन सच अ वे डेट दे डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्हीकल इन रेस्क्यू ऑपरेशन, है ना। अगर कभी रोड पे भी एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोग अपने व्हीकल्स को साइड में लगा के ही चीज़ें करनी चाहिए, ताकि जो नॉर्मल फ्लो है ट्रैफिक का वो ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, उधर ही रास्ते के बीच में गाड़ी खड़ी करके खड़े हो जाते हैं। सो ये अगेन इट नॉट अ गुड साइन। अब ऐसे टाइम पे हमको क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट नॉट टू डू।
ड्यूरिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द वर्क शुड नॉट बी गैदर अराउंड। यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक बहुत गंदी हैबिट है कि हम लोग आसपास में भीड़ इकट्ठी करके खड़े हो जाते हैं। ओके, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन वाले होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। डू नॉट एंटर द अफेक्टेड एरिया टिल द एरिया अंडर द गैस लीक इज डिक्लेयर टोटली सेफ बाय द अथॉरिटीज। आपको उस एरिया में बिल्कुल एंटर करना नहीं चाहिए जब तक अथॉरिटीज आपको बोले कि नाउ इट इज़ अ सेफ। ओके, 2012 में भी जापान में जब सुनामी आई थी, वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो वहाँ पे जितने भी लोग थे शहरों से के, वहाँ पे पूरा शहर खाली करवा दिया गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखा कि कहीं कहीं से कोई गैस लीक ना कर रही हो, एंड जब उनको श्योर हो गया कि कोई ऐसा डेंजर वाला सिचुएशन नहीं है, देन उन्होंने उसको सेफ डिक्लेयर कर दिया। ओके, सो डोंट गो एनीवेयर टिल द अथॉरिटीज गिव परमिशन टू यू। डू नॉट ज्वाइन अ रेस्क्यू ऑपरेशन विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग इन रेस्क्यू ऑपरेशन एंड नेसेसरी इक्विपमेंट्स। ओके, सिंपल सी बात है, आपको वही रेस्क्यू ऑपरेशन ज्वाइन करने चाहिए जिसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हो। ओके, फॉर एग्जांपल फायर फाइटर्स होते हैं, फायर फाइटर्स जो होते हैं वो उनको ट्रेनिंग होती है कि कैसे आपको डील करना है। ओके, एंड उनके पास प्रॉपर मास्क होता है, इनके पास प्रॉपर ग्लासेस होते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल कहीं पे आग लग जाती है एंड ऊपर बिल्डिंग में 3 लोग फंसे हुए हैं, अगर आपके पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं, आप अगर बचाने जाओगे, हीरो बनने जाओगे, तो पता चला 3 लोग तो मरे, प्लस साथ में उनको बचाने गए 10 लोग और मर गए। सो आई डोंट वांट कि ऐसा कोई सीन क्रिएट हो। सो प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह से ही, प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हो तो ही आपको रेस्क्यू ऑपरेशन में करना चाहिए। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन वाले आपकी कोई हेल्प मांग रहे हैं, देन यू कैन डू डैट ऑल्सो। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज द वायरल डिजीज एंड वायरल डिजीज इन द पेंडेमिक टाइम। और इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोरोना वायरस ऑफकोर्स, ठीक है, ये भी एक वायरल डिजीज ही है। व्हेन अ लार्ज, ओके, सो आई हैव पुट एन एक्स्ट्रा इमेज फॉर यू टू नो ये कैसा वायरस होता है। ओके, सो ये एक वायरस है, इसको अगर हम लोग टेलीस्कोप नहीं, माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे तो ये वायरस हमको कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, सिंस इसके ऊपर एक ताज जैसा स्ट्रक्चर बना है, इसलिए इसका नाम नोबल कोरोना वायरस है। ठीक है, वायरल व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ओवर अ मच वाइडर एरिया बिकम अ विक्टिम ऑफ एनी डिजीज इज कॉल्ड पेंडेमिक। ठीक है, अभी सब लोग कोरोना से अफेक्टेड हो गए तो उसको पेंडेमिक ही बोलेंगे। पीपल लूज देयर लाइव्स ड्यू टू द डिजीज। लकीली अच्छा है इंडिया में इतनी जाने नहीं गई, अदरवाइज एक टाइम तो सब लोग डर ही गए थे। देयर इज ए फास्टर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द पेशेंट ऑफ द वायरल डिजीज देन जनरल डिजीज। आम बीमारियों से अलग यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट्स के नंबर एकदम से बहुत बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि इंडिया में एक टाइम था 90,000 तक केसेस आ रहे थे, बट अब इतने केसेस नहीं आ रहे। ओके, सो टिल टुडे thousands of people have been victim of the disease like the dengue, Ebola, swine flu, influenza etc. ओके, ये कुछ बीमारियाँ थी जो पहले फैली थी एक्सेट्रा, और जब ये बुक प्रिंट हुई थी तब कोरोना वायरस नहीं था। एनी हाउ दिस डिजीज आर वेरी मच फियर्ड। लोग इनसे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। इन अर्लियर टाइम लैक्स ऑफ पीपल वेयर विक्टिम ऑफ द प्लेग। तो प्लेग एक बीमारी थी जिससे लाखों करोड़ों लोग मरे थे। हाउएवर such deadly diseases are controlled now with the help of the scientific invention and antiviral vaccine for safety। आजकल क्या इनकी वैक्सीन्स आ गई हैं और अब ये बीमारियों से ज़्यादा लोग मरते नहीं हैं। Along with it, a new viral disease and those diseases which are cannot be cured by traditional medicines, they are always a danger and widespread on mankind। ठीक है, लकीली कहो कि कोरोना वायरस जो था वो उसका जो कन्वर्जन रेट था, कन्वर्जन रेट मीन्स इफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल को अगर कोरोना होता है तो इट इज़ पॉसिबल कि 2 या 3 लोगों की डेथ होगी। अब वो 2 और 3 लोग कौन से होंगे, वेल ऑफकोर्स ये वही लोग होंगे जिनको शुगर की बीमारी हो सकती है, या तो फिर उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, खाने में वो लोग ध्यान नहीं रखते हैं, इन लोगों की डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, सो इसलिए कहता हूँ कुछ अच्छा खाया करो। सो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्लेग एपिडेमिक ऑफ सूरत इन September 1994, a recently swine flu and a dengue epidemic, and many agencies took primitive step to prevent death। ठीक है, ऐसा ही सूरत में एक बार प्लेग फैला था, एंड स्वाइन फ्लू, इबोला, ये भी बहुत सारी इसमें पेंडेमिक आती रही है, बट
कोरोना हम में से कोई भूलने वाला नहीं है। एनी हाउ, चलो, तो हम लोग सेफ्टी क्या रख सकते हैं वायरल डिजीज के अगेंस्ट? अफकोर्स हम कोरोना के अगेंस्ट हम लोग मास्क ही लगा ही रहे हैं। ओके, एन इम्पोर्टेंट स्टेप टू बी सेफ फ्रॉम द वायरल डिजीज इज टू बी विजिलेंट अबाउट इन्फेक्शन। उसके इन्फेक्शन से हमको बचना होगा। पीपल शुड बी acquainted with the reasons, result and safety about the disease from the propaganda and transmission। जी, बीमारी ट्रांसमिशन यानी कांटेक्ट के थ्रू ही फैलती है, तो हमको उसको ट्रांसमिशन रोकना पड़ेगा। अब सिंस कोरोना का ट्रांसमिशन तो एयर से मतलब फैलता है, तो बाई वायरस, तो उसको हम लोग मास्क से प्रोटेक्ट करते हैं। टेक एंटी डिजीज वैक्सीन। ओके, सो लकीली राइट नाउ वैक्सीन आर अवेलेबल, तो हमको वो लगवा लेनी चाहिए। देखते हैं मेरा नंबर कब आता है। एनी हाउ, अरेंज ए स्पेशल सेपरेट वार्ड फॉर पेशेंट। ओके, जस्ट बिफोर फ्यू डेज में सेल्बी हॉस्पिटल में गया था। वहाँ पे जो एक पर्टिकुलर फ्लोर है वो कोविड फ्लोर है। ओके, सो अभी सिर्फ कोरोना के पेशेंट को वहाँ पे रखा जाता है, एंड वहाँ के डॉक्टरों को भी बहुत प्रिकॉशन से रखा जाता है। सो दिस इज व्हाट आई फील। अरेंज ए स्पेशल सेपरेट वार्ड फॉर द पेशेंट फॉर ट्रीटमेंट, इधर हम लोग रीड कर चुके हैं। आई डोंट नो मैं फिर से क्यों रीड कर रहा हूँ। एनी हाउ, टेक अ स्टेप एज पर द गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द WHO एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट टू क्रब द वायरल डिजीज। तो हमको WHO की सुननी चाहिए। एक्चुअली WHO की वजह से ही कोरोना ज़्यादा फैला। अगर WHO थोड़ा एक महीना पहले और लोगों को बताता तो शायद आई थिंक कोरोना वायरस इतनी बुरी तरह से स्प्रेड नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, सो टेररिस्ट अटैक और भी बाकी के कुछ मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर हैं वो हम लोग देखेंगे इन अवर नेक्स्ट सेशन। सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। वेरी सून आई एम गोइंग टू ब्रॉड पार्ट 5। ऑफकोर्स टेररिस्ट अटैक तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। फ्रेंड्स, मेरा फेवरेट पार्ट है पार्ट 6, ट्रैफिक वाला। ओके, सो उसके लिए आपको थोड़ा 1-2 दिन और वेट करना पड़ेगा। एंड वंस आई एम गोइंग टू finish this explanation series, then I will again come back with a question answer series. Okay friends, with this note I am signing off as always. Bye everyone, and thanks for listening me.